ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਸੀजन खत्म हो जाती है। गए ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि ऑक्सीजन वहाँ पे कम रहेगी और बताया गया था कि आपको लाइन में चलना है। सारी चीज़ों को हमने फॉलो किया, एक हफ्ते तक वहाँ ट्रेनिंग हमारी चली। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 मीटर ऊंचे जाके आए ने जिथे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सर जो हमने पीक सबमिट किया उसकी जो ऊंचाई थी वो थी 6034 मीटर्स। और चूंकि मैंने आपको बताया कि नाम भी नहीं दिया अभी इसको, तो IMF अलोंग विद SOI सर्वे ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेंगे कि उसका नाम हम क्या दें। अब हमें उम्मीद है कि वो दिव्यांग के ऊपर ही उसका कुछ नाम देंगे, क्योंकि 5 दिव्यांगों ने ही इसको फतेह किया है। इस तरह करके उत्थे मतलब सोना हमेशा ही बिल्कुल मना सीगा कि तुसी इस तरह नहीं सोओगे तो ना तो इस तरह सोओगे। जिस तरह सोओगे तो ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆएगी। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी और मुझे लगता है मुझे ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम हुई वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। सर टेम्परेचर की बात करूं तो वैसे वहाँ पे टेम्परेचर 3-4 रहता था सुबह के टाइम में, बट रात के टाइम में जब हम सोने के बाद जब हम अगले दिन सुबह टेंट से हम उठते थे तो हमारे टेंटिंग के बाहर हमारे आइस होती थी, स्नो होती थी, तो रात के वक्त -0 -2 3 चला जाता था। ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਤਰਦੇ? ਔਰ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ चीज़ है। हाँ ये सर बेस कैंप 1 से हम कैंप 2 की तरफ जब रवाना होने वाले थे तो हमारे जो लीडर थे बिमन विश्वास, उन्होंने बोला कि अभी हम पहले 2 लोग जाके रेकी कर रहे हैं। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 250 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਔਂਕੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी दिल्ली में IMF में, हमारी पूरी टीम 20 तारीख को 20 अगस्त को दिल्ली हम पहुँच चुके थे। तो हमें पहले दिन ही वहाँ बता दिया गया था कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने वाली है और आप लोग अभी से 5 दिन आपके पास दिल्ली में हैं, आप यहाँ दिल्ली में ट्रेनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप अभी से अपने माइंड को ये क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दे दें, अपने आप को ये बता दें कि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने वाली है।
और वहाँ पे आपको माउंटेन क्लाइंब करना है तो प्रॉब्लम होगी, आपको हारना नहीं है, आपको बीच में छोड़ना नहीं है, आपको पूरा ऊपर तक आपको जाके सबमिट करना है। तो वो 5 दिन थे हमारे पास जो हम दिल्ली में थे, वहाँ पे हम पूरी टीम ने सुबह हम 6 बजे उठते थे। 6 बजे उठने के बाद हम पूरा बॉडी वर्कआउट करते थे, एक्सरसाइज करते थे। जो हमारे टीम के लीडर थे बिमन बिस्वास, जो कि आईटीबीपी के जो कमांडर ट्रेनर हैं, उन्होंने हमें 5 डेज़ वहाँ पे ट्रेनिंग कराई, जिसमें हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती थी, हमारी बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज होती थी। उसके बाद 5 दिनों के बाद जब हम मनाली पहुँचे तो मनाली तक भी बिल्कुल ठीक था। जब हम ले पहुँचे सर अराउंड 30 अगस्त को जब हम ले पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही हमारा पूरी टीम का हेडेक स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ पे। और फिर वहाँ हमारे जो हमारे हेल्थ ऑफिसर थे जो एयरफोर्स से आए थे, बसवराज सर, उन्होंने हमें पूरा हमारा बीपी चेक किया। हमें हमारा ऑक्सीजन उन्होंने मशीन लगा के चेक किया। उन्होंने हमें एक्सरसाइज बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई। और कुछ लोगों को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो मेडिसिन भी दी उनको, डायमोक्स मेडिसिन होती हैं जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है तो ऑक्सीजन वो ज़्यादा लेते हैं। तो वहाँ जाके मेडिसिन के थ्रू 1-2 दिन में वो हमारी बॉडी ने पूरा एक्लेमेटाइज कर दिया और वो ठीक हो ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਣ नहीं सकते सी, बोल नहीं सकते सी? सर ये हमारी जो टीम थी इसका नाम ही था दिव्यांग टीम। और ये जो दिव्यांग टीम थी ये टोटल 5 लोगों की थी, जिसमें 3 लोग थे जो बोलने में असमर्थ थे, 2 लोग थे जो देखने में असमर्थ थे, और 5 के साथ हम 7 लोग और थे, जिसमें हमारे एक मेंटोर थे जो लीडर थे, उनको हमेशा उनको वॉच करते थे, गांधी सर, जो कि 75 ईयर्स ओल्ड के हैं। और उसके साथ हमारे डॉक्टर की टीम, मेरे को इंटरप्रेटर को मिला के, हर चीज़ को मिला के टोटल हमारी 12 लोगों की टीम थी। यस। किन्ने दिनों का सफ़र रहा है सारा? किन्ने दिन सफ़र कंप्लीट किया? टोटल हमारा जो ये एक्सपीडिशन था ये टोटल 25 दिनों का था, जो कि अगर मैं बात करूं कि ट्रेनिंग तो हमारी 20 अगस्त को स्टार्ट हो गई थी। हमने जो शुरू बेस कैंप से किया, जो हमारा पूगा वैली में था, जिसकी हाइट थी अराउंड 3700 मीटर्स, जो हमारा बेस कैंप था, वहाँ से हमारा जो ट्रेनिंग पूरा सबमिट तक रहा है वो 13 डेज़ का रहा है। है ना। उससे पहले हमारी प्रैक्टिस रही है, उससे पहले हमारा ले में हम रहे 2 दिन, मनाली में रहे 1 दिन, और रहकर वहाँ पे हम एक्सरसाइज करते थे। वहाँ पे क्लाइमेट को हम कोशिश करते थे कि हम इसके साथ हम अडोप्ट हो जाएं ताकि हम काम कर सकें। ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਲੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਚਾਈ ਸੀ उस चोटी ਦੀ? सर जो हमने पीक सबमिट किया उसकी जो ऊंचाई थी वो थी 6034 मीटर्स। और इस पीक पे अब से पहले कभी भी एक ह्यूमन टच नहीं हुआ है। इसकी जो पहले जो रोड मैप बना है, जो इसका वे तैयार किया गया है, जो आईटीबीपी के जो हमारे बिमन विश्वास है उन्होंने तैयार किया है, वो ड्रोन के थ्रू किया गया था, कैमरास के थ्रू उन्होंने किया था, क्योंकि ह्यूमन टच नहीं हुआ था। तो पहली बार ही उसमें वहाँ पे ह्यूमन टच हुआ है। और चूँकि मैंने आपको बताया कि नाम भी नहीं दिया अभी इसको, तो IMF अलोंग विद SOI सर्वे ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेंगे कि उसका नाम हम क्या दें। अब हमें उम्मीद है कि वो दिव्यांग के ऊपर ही उसका कुछ नाम देंगे, क्योंकि 5 दिव्यांगों ने ही इसको फतेह किया है। बिल्कुल। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾਜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ये सर जैसे कि मैं बताऊं, ये जो 5 लोग गए थे, ये 5 लोग पहले से ही डिसाइडेड थे, क्योंकि इन्होंने 2016 में BMC कोर्स किया हुआ है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया हुआ है इन्होंने। तो उन्हीं को लेके जाना था जिन्होंने BMC किया हुआ है, कोर्स इन्होंने किया हुआ था, सर्टिफिकेशन थी। प्लस ये लोग अब मैं बात करूँ चैलेंजेस की बात करता हूँ। अब जैसे जो बोल नहीं सकते उनके साथ तो मैं था इंटरप्रेटर, जो भी वहाँ पे हमारे ITBP वाले सर बताते थे, बिमन विश्वास, वो हम इनको साइन लैंग्वेज में हर चीज़ इनको हम बताते रहते थे। प्लस एक चैलेंज वो था कि जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, विजुअली इम्पेयर्ड के साथ हमारे साथ एक मैम थे, वो दिल्ली से हायर किए थे हमने, वॉलेंटियर थे वो, उनका नाम है मोनिका चौधरी। वो हमेशा इनके साथ रहते थे ड्यूरिंग दी एक्सपीडिशन। और जब भी हम चल रहे हैं तो इनको बता रहे हैं कि अभी आगे बड़ा पत्थर है, अब यहाँ पे खाई है, उस तरफ पहाड़ है, आगे पानी है, आगे आपका रास्ता
प्लेन नहीं है, आगे रास्ता ऊपर नीचे है, तो आपको केयरफुल होकर चलना है, वो सारा उनको हमेशा गाइड करते रहते थे। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। कहाँ से रहने वाले हो आप, जो आपने अभी अचीवमेंट की है, कि क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो आप? मेरा नाम दीपक जैन है और मैं 49 इयर्स का हूँ। मैं चंडीगढ़ से ही बॉर्न बॉटम हूँ। आप जैसे कि बताया, मैंने 2016 में बीएमसी कोर्स किया हुआ था मैंने। अब आईएमएफ ने इस बार हमें चूज़ किया और मैं थैंकफुल हूँ आईएमएफ का बहुत। और मेरे लिए बहुत ही ये कि ये सौभाग्यपूर्ण था कि मैं दोबारा इस चोटी पे मतलब दोबारा मैं जाऊँ और सबमिट करूँ। बट मेरे को ये फील हुआ कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी और मुझे लगता है मुझे ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम हुई वहाँ पे। और मैंने बट ये अपना जो बैरियर थे उसको ना देखते हुए मैंने अचीव किया और हम सब जीत के आए हैं वापस। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੀ महसूस ਕੀਤਾ? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा सर, जैसे मेरे को लगा कि मैं चला जाऊँगा, मैं ठीक कर लूँगा, बट जैसे ही मैं लेह में पहुँचा, पूगा वैली में जब बेस कैंप में था, अब जैसे वहाँ पे ट्रेनिंग थी, उन्होंने बोला था आपको 15 kg का बैग लेके आपको जाना है और वापस आना है। और जब मैं डिक्लाइन कर रहा था माउंटेन से वापस आते वक्त, मेरे को वहाँ पे शिवरिंग होने लगी और रात को 1 बजे मेरी हेल्थ ख़राब हुई। बट थैंकफुली डॉक्टर थे, उन्होंने वो प्लान कर रहे थे कि ऑक्सीजन भी शायद मुझे पिलाई जाएगी, ऑक्सीजन भी दी जाएगी, बट उन्होंने मेडिसिन देकर उन्होंने मेरे पीठ में पैट कर उन्होंने मेरे को टेंट से बाहर निकाला और अच्छी हवा में उन्होंने बोला कि थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। तो 1-2 घंटे के बाद मैं ठीक हुआ और मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर का, जिन्होंने मेरी वहाँ पे उस टाइम पे लाइफ को सेव किया। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਦਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं ये बताना चाहूँगा सर, देखने में आसान नहीं थी, बिल्कुल भी केक वॉक नहीं थी। वहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, वहाँ का क्लाइमेट इतना जल्दी चेंज हो रहा था, मतलब मेन तो हवा की प्रॉब्लम थी ना, इजी बिल्कुल भी नहीं था। अब वहाँ जाके ये पता लगा कि हमें डिफ़िकल्टियों से लड़ना है और मैं और लोगों को भी एनकरेज करना चाहूँगा कि वो लोग जाएँ और इसको फतेह करके आएँ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ? ਓਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ? मेरा नाम है आयशना और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं 25 साल की हूँ। जैसे कि मैंने 2016 में बीएमसी कोर्स किया था, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। अब दोबारा लगभग 8 साल बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली आने की, कि आपको दोबारा बुलाया जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी इसके रिगार्डिंग। अब फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं आपको जाना चाहिए। मैं पहले डाइसी हो रही थी कि जाऊं या ना जाऊं, बट फैमिली ने बोला नहीं यू शुड गो। पहले मेरे को लग रहा था कि क्या करेंगे, हम कम लोग हैं जाके वहाँ पे, बट नहीं, फैमिली ने बोला नहीं आपको जाना चाहिए। और जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में हमें ट्रेनिंग मिली, शुरू के दिनों में एक्सरसाइज किया, सारा हमें बताया गया कैसे माउंटेन में रहना है, कैसे बैग आपको उठाना है, आपको कैसे शूज़ पहनने हैं, कैसे क्रैम्पोन पहनने हैं, आपको सारा एक्सप्लेन करते गए। ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि ऑक्सीजन वहाँ पे कम रहेगी और बताया गया था कि आपको लाइन में चलना है। सारी चीज़ों को हमने फॉलो किया, 1 हफ्ते तक वहाँ ट्रेनिंग हमारी चली। अब जैसे वो जगह हमें बताया गया था, जैसे हम बेस कैंप में वहाँ पहुँचे और बेस कैंप में वहाँ जाके देखा कि जैसा हमें बताया गया था वही सब चीज़ यहाँ पे अब हो रही है। वहाँ हमें टेंटिंग लगानी पड़ी, टेंट लगा के वहाँ हम खुद रहते थे, अपने आप सारा काम हम खुद करते थे। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए वहाँ पे। और जो जैसे लीडर ने हमें बताया था कि आपको खुद वॉक करना है और खुद अपना बैग उठा के जाना है आपको, तो वो तो बहुत हमारे लिए एक टफ़ जॉब थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बेस कैंप से कैंप 1 पहुँचना, कैंप 2 पहुँचना, अपना सारा सामान लेकर बहुत टफ था। बट लीडर ने हमें जैसा बताया कि अगले दिन आपको अब सबमिट करने जाना है कैंप 2 के बाद, और रात को हम सब जल्दी सोने के बाद हम सब अगले दिन हमारी पूरी दिव्यांग टीम अराउंड सुबह हम जैसे उठे 5 बजे, 6:30 बजे तक हमने कितने बजे छोड़ा, 5 बजे हम सब 5 बजे हम सब निकले वहाँ से और हमें वहाँ पे 6 घंटे लग गए
उस पीक तक पहुंचने में, और वो बहुत ही इतनी मतलब वहाँ पे पहुंचते पहुंचते हमारी तबीयत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, हम थक चुके थे। बट जैसे ही वहाँ पहुंच के हमने झंडा लहराया IMF का और इंडियन फ्लैग, और वो हमारी सारा जोश हमारा वापस आ गया। और हम जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि हम वहाँ से आए हैं, तो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि सर इतना नीचे से हम ऊपर तक आए हैं। एक बारी तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आंखों पे कि हम इतना चल के आ गए हैं। हम कैसे आए हैं ये हमें नहीं पता, बट हमारी पूरी टीम ने किया है। हमारे डॉक्टर, हमारे लीडर, प्लस ये पूरा हमारा जो हमारा जो पूरा ये एक्सपीडिशन था साइन लैंग्वेज में था ये, तो मैं सर का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हर चीज़ इशारों में हमें बताई ताकि हमें समझ आई हर चीज़। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा IMF का, स्पेशली इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन न्यू दिल्ली का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम वहाँ जाएँ और अपने स्किल्स को हम अपने आप को परफॉर्म करें। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ? नहीं, मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ हर काम कर सकती हैं, जैसे क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाकी बोलने सुनने वाली लड़कियाँ भी हर काम वो करती हैं जो लड़के करते हैं। बट ये है कि ये प्रैक्टिस हमारी इस बार पहली बार हुई है कि बैग के साथ जाना है, और हमने वो प्रैक्टिस पहले कर ली थी दिल्ली में, तो इसीलिए वो हमारे लिए बहुत इजी रहा और हमें इतना अंडरस्टूड हो गया हर चीज़ के बारे में। अब वॉलेंटियर थी हमारे साथ एक, जैसे कि मोनिका मैम, वो हमें सब बताते रहे थे। लड़की हमारे साथ वॉलेंटियर थी, वो हमें बताते रहे कैसे आपने कोई भी आपने जो भी डूज़ एंड डोंट कर रहे हैं, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमें बता रहे थे, तो हमारे लिए आसानी रहा वो। ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਡਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? हाँ सर बिल्कुल, जब हम डर तो वहीं से शुरू हो गया था, जब हमने वो पीक देखी थी नीचे से ही, वहीं से डर शुरू हो गया था कि इतनी दूर है पीक, कैसे हम कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट पूरी टीम ने हमारा साथ दिया, हम पूरी टीम गए वहाँ पे, और वहाँ पहुँच कर जब हमने सबमिट कर लिया ना, उसके बाद डर खत्म हो गया सर। फिर तो हम कॉन्फिडेंट हो गए, और हमें ये लगा कि वापस आना तो अब ईजी है, अब तो वापस हम चले जाएंगे। बट वहाँ पहुँचने तक हमें डर था। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਮਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਗੁੜੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਨੂਨ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? सर मेरा जो एम है, जो मेरा फ्यूचर एम है, मैं चाहती हूँ कि अब जैसे IMF ने मेरे को बोला है कि अब ये एक ट्रायल था और अब हर साल दिव्यांग बच्चों को लेके जाएंगे और आपको हम एज अ ट्रेनर रखेंगे उसमें। तो मैं बहुत खुश हूँ कि IMF ने मेरे को ये बोला है कि आश्वासन दिया है कि एज अ ट्रेनर मैं जाऊँगी। तो मैं जाना चाहूँगी कि अब जितने भी हम क्लाइंब करें, सबमिट करें, और उसमें मैं एज अ ट्रेनर जाऊँ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਲ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। जैसे कि सर हमें पहले ट्रेनिंग दी गई थी, लीडर ने हमें बताया था कि सारा सामान हमें जो दिया गया है वो हमें लेके जाना है, और अननेसेसरी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके जाना है, क्योंकि हाइट पे आपका हर चीज़ का वेट डबल हो जाता है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ, सीट हार्नेस, हमारा डाउन जैकेट, और उसके बाद क्योंकि हमें डाउन जैकेट हमें इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहाँ स्नोफॉल हो सकती है, और विंड शीटर्स हमारी, उसके बाद हमें खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स है ना, पानी की बॉटल्स हमारी, उसके बाद हमारा टॉफ़ीज़ हमारा, जैसे अगर हमें कभी चक्कर आते थे या कुछ हमें वीकनेस महसूस होती थी तो हम जूस पीकर, बादाम खाकर अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग करते थे। आइसेक्स हम लेके जाते थे अपने साथ, वो हमारा एक बिल्कुल टूल था, हमारा वेपन था कि हमें बोला गया था कि जब तक आप ये माउंटेनियरिंग कर रहे हो, आइसेक्स आप हमेशा आपको साथ रखना है। आपकी ग्लासेस, आपकी कैप, आपका सनस्क्रीन, हर चीज़ हम कैरी करते थे पूरे दिनों में ऑल ओवर अराउंड द एक्सपीडिशन। और जैसा हमें बताया गया था, और रात के लिए टॉर्च, क्योंकि वहाँ माउंटेन में तो शाम के वक्त अंधेरा हो जाता था, तो टॉर्च, ये सब चीज़ें हम अपना खुद हमें सामान दिया गया था, हम कैरी करते थे। सामने उन्होंने नाम की है रजत बत्रा। रजत, ये बात रजत बत्रा से बात करते हैं हम। इनको सुनाई देता है पर ये देख नहीं सकते, इनको नहीं दिखता। बात करते हैं रजत,
क्या हाल है, ठीक ठाक हो? बहुत बहुत मुबारक पहले आपको, अभी चोटी सर्च करके आए हो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਤ ਬੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ 11 ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ PGGC ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਾਲਜ। ਰਜਤ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਹੌਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਰ ਲੱਗਿਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਸੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਰਾਤੀ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਓਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਊਨ ਜੈਕਟ, ਵਿੰਡ ਚੀਟਰ, ਵਿੰਡ ਲੋਅਰ, ਕਰੈਂਪੋਨ, ਹਾਰਨੇਸ ਔਰ ਕੈਰਾਬੀਨਰਸ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ, ਗਲਵਸ, ਹੈਡ ਟੋਰਚ ਔਰ ਵੂਲਨ ਕੈਪ, ਵੂਲਨ ਗਲਵਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਨਕੋਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਐਂ ਗਿਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਣੀਆਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੀ ਬਰਫ਼ ਗਿਰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ, ਹੈਡਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੋ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਏ ਬਰਥ ਬਲਾਈਂਡ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀ। ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸਫ਼ਰ? ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਰਸਤਾ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਹੈਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਪੱਥਰ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਢਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ? ਔਰ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਜੋਬ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਆ? ਘਰ 'ਚ ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਸਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ? सर सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज था, इनको सबको अपना अपना बैग उठाना। बिल्कुल। तो जो पहले बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था उसमें इनको पैम्पर्ड किया गया था कि आप बैग मत उठाओ, बैग आपको ऊपर पहुंच जाएगा, आप वहां तक पहुंच जाओ। तो यहाँ पे जो हमारे लीडर ने पहले दिन कहते बैग खुद उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहला चैलेंज ये था कि बैग खुद कैरी कर रहे हैं। अब बैग के अंदर हम चंडीगढ़ से भी सामान लेके गए हैं, दिल्ली से भी हमें सामान मिल गया। अब हमें ये डिसाइड करना है ऊपर जाकर कि हमें कौन सा सामान वहाँ पे यूज़ आने वाला है, क्योंकि अगर हम बैग हैवी लेके जाएंगे तो हमसे चला नहीं जाएगा। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल था बैग लेके जाना। और मैं थैंकफुल हूँ आईटीबीपी सर का, जो हमारे बीमन विश्वास जी हैं, कि उन्होंने हमें ये कि चैलेंज दिया। उन्होंने बोला कि तुम कर सकते हो, और उन्होंने नहीं देखा कि ये डेफ है इसको छोड़ दो, ये ब्लाइंड है इसको रहने दो। नहीं, उन्होंने बोला जो ब्लाइंड है, डेफ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको इक्वली हम ट्रीट करेंगे। यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबको अपना बैग उठाना है। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? सर टेम्परेचर की बात करूं तो वैसे वहाँ पे टेम्परेचर 3-4 रहता था सुबह के टाइम में, बट रात के टाइम में जब हम सोने के बाद, जब हम अगले दिन सुबह टेंट से हम उठते थे तो हमारे टेंटिंग के बाहर हमारे आइस होती थी, स्नो होती थी। तो रात के वक्त -0, -2, -3 चला जाता था। और हमारे पास स्लीपिंग बैग होता था, हमारा जो बैग हम लेके चलते थे। आप बिलीव करोगे, हम डाउन जैकेट पहनकर, मतलब एक हम पहले वार्मर पहना है, हमने गर्म वाला वार्मर पहना है, उसके ऊपर एक जैकेट पहनी है विंड शीटर वाली, फिर डाउन जैकेट मोटी वाली जैकेट पहन के फिर हम उसमें हम सोते थे। अगर हमने जैकेट निकाल दी और हम सो गए तो पूरी रात हम शिवरिंग करते रहेंगे, कांपते रहेंगे ठंड ਪਰਿਵਾਰ से। ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सर फैमिली से हमारी बात, आखिरी बात हमारी हुई थी 3 तारीख को जब हम बेस कैंप में थे। बट बेस कैंप से जब हम ऊपर को निकले तो हमारे फ़ोन बंद हो चुके थे, फ़ोन हमारे लद्दाख में ही बंद हो चुके थे। बट हम इंटरनेट, किसी से हम इंटरनेट एक्सेस था तो इंटरनेट लेके हम व्हाट्सएप पे बात कर लेते थे। फिर 3 तारीख से लेकर 13 तक हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ फैमिली वालों से, क्योंकि ऊपर हम चले गए थे, वहाँ तो नेटवर्क नहीं था बिल्कुल भी। तो वहाँ पे हमारे जो लीडर थे उनके पास वॉकी टॉकी था। तो जो मैंने आपको बताया, जो हमारे मेंटोर थे, जो हमारे गांधी सर थे, जो वो बेस कैंप में रहते थे, ऊपर जाके हमारे जो लीडर थे वो वॉकी टॉकी पे बताते थे कि हम अब बेस कैंप पहुँच गए हैं, सब ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती थी बेस कैंप में सब ठीक है, बेस कैंप से दिल्ली में इन्फॉर्मेशन चली जाती थी कि सब ठीक है। तो वैसे एक ये ऑटोमेशन सर्कल चला हुआ था कि वहाँ से बेस कैंप बताते थे, बेस कैंप से दिल्ली इन्फॉर्मेशन आती थी। अगर फैमिली वालों को कोई दिक्कत है तो वो दिल्ली में फ़ोन करते थे कि हमारे बच्चे ठीक हैं सब। तो हाँ पूरा, तो वो वहाँ पे पूरी टीम थी, वो उनको बताते थे कि अब बच्चे आपके बेस कैंप 1 में पहुँच गए, अब कैंप 1 आ गया, कैंप 2 पहुँच गए, सबमिट कर लिया। जिस दिन हमने सबमिट किया तो वहाँ पे सर ने वॉकी टॉकी के थ्रू बताया बेस कैंप में कि हमने सबमिट कर लिया है। तो वॉकी टॉकी के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने दिल्ली में इन्फॉर्म किया। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ? सर खतरनाक तो यही था कि वहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। वहाँ पे जो माउंटेन थे सारे डेजर्टेड हैं, सब सूखे हुए हैं। मतलब वहाँ पे 12 दिन हमने ग्रीन देखा नहीं, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं देखा, ग्रीनरी नहीं थी वहाँ पे। प्लस पानी का एक ही नाला था जो पुगा नाला था, पानी का वहाँ पे इतना एक्सेस नहीं था, क्योंकि हमें पानी भी खुद भर के लेके जाना है, हमें पानी पीना भी है। 12-13 दिन तो हम नहाए ही नहीं सर, क्योंकि पानी ठंडा था वहाँ पे। तो 2 दिन तो ब्रश भी नहीं किया होगा बच्चों ने, मतलब मैंने नहीं किया, मुझे इनका नहीं पता, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ठंडा था सर। और पानी के लिए हमें दूर जाना पड़ता था, दूर इधर से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था, बट इतनी हवाएं चलती थी सर वहाँ पे कि आप टेंट के बाहर 10 मिनट अगर आप खड़े हो जाओगे तो आप बॉडी कांपने लग जाएगी आपको। आप गए टेंट के अंदर, टेंट में खाना खाया, फटाफट अपने टेंट में गए, सो गए, लेट गए, काम किया, निकले बाहर ऐसा घूमने के लिए वहाँ नहीं था, क्योंकि वहाँ हवाएं चल रही हैं सर, स्नोफॉल हो रही है, 5 मिनट में धूप है, 5 मिनट में बारिश है, 5 मिनट में स्नोफॉल हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा, बैग खुला पड़ा है आपका। जब मौसम चेंज हो रहा है आपको फटाफट कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है। अब मेरे को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी, कैंप 2 में मेरे को हो गई थी, जब हमने सबमिट से एक दिन पहले रात को ये मेरे साथ सो रहा था रजत,
हम एक ही टेंट में थे। ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਲੇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੀ? नहीं सर, तीन। तीन पड़ाव। बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2। सर हम ऐसा करते थे, बेस कैंप से कैंप 1 में गए, अब पहले दिन जाके रेकी की हमने, क्योंकि ह्यूमन टच मैंने बोला पहली बार हुआ है। तो जब रेकी करने गए हम अपना अपना सामान लेके चले जाते थे। फॉर एग्जांपल हमारा इतना बड़ा सामान है 15 किलो का, तो पहले दिन हम गए 7 किलो का सामान हम ले गए, हमने वहाँ दबा दिया पत्थरों के बीच में, ताकि हम अगले दिन जो बैग लेके जाएंगे वो हमारा बैग हल्का हो। तो सामान रख दिया वहाँ जाके, पत्थर से ढक दिया। वो रिस्क पूरा होता था कि रात को कोई जानवर आ जाए, वहाँ क्या घूमते होते हैं, वहाँ वाइल्ड हॉर्सेस घूमते हैं, तो वो हमें डाउट था, एक डर था कि वो आके सामान ख़राब ना करें। बट थैंकफुली गॉड वॉज सो काइंड, स्टिल सो काइंड कि कोई भी हमारा सामान आज तक ख़राब नहीं हुआ, ना खाने का ना कपड़े पहनने का, सारा सामान एज इट इज़ ऐसा होता था। अगले दिन जाके हम सामान निकालते थे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, कि रिस्क ना लो, भी बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ, ये सर बेस कैंप 1 से हम कैंप 2 की तरफ जब रवाना होने वाले थे, तो हमारे जो लीडर थे बिमन विश्वास, उन्होंने बोला कि अभी हम पहले 2 लोग जाके रेकी कर रहे हैं, आपको फ़ोन पे बताएंगे कि आना या नहीं आना, आप लोग इतने ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो लोग सुबह 8 बजे निकल चुके थे, हम इतने ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वी वर प्लानिंग कि हम 9:30 बजे तक निकलेंगे यहाँ से दोबारा जाने के लिए। मगर हम जैसे ही तैयार होकर हम बाहर निकले टेंट के बाहर, हम जैकेट्स वगैरह पहनी, हमने सब कुछ कैप वगैरह पहनी, इतने में वॉकी टॉकी से आ गया कि मौसम ख़राब है, आप लोग यहाँ मत आएँ। और बस उनको कहने की देर थी, वो मौसम वहीं पे कैंप 2 तक पूरा मौसम ख़राब हो चुका था, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। तो हम अपने टेंट में हम वापस चले गए सर। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? सर अभी प्लानिंग होगी, अभी ये ट्रायल बेस में था, जैसे जो जहाँ तक अभी तक हमें बताया गया है कि अभी ये फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है, एक कहो कि ट्रायल बेस पे था ये। अब IMF के थ्रू जो हमें बताया गया है कि हर साल वो दिव्यांग बच्चों को लेके जाएंगे। अब कौन सी पीक पे लेके जाएंगे, कौन सी लोकेशन पे लेके जाएंगे, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, बट वो चेंज होती रहेंगी, वो मौसम को देखकर, टाइम को देख के, हालात सिचुएशन को देख के चेंज होंगी, बट वो डिसाइड करेगा IMF न्यू दिल्ली। ਨਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच सर। ਰਜਤ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਂਕੜਾ ਹੋਣ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਡੀ ਐ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਬਿਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ IMF ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੱਕਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ IMF ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? सॉरी सर, जैसे कि ये जो माउंटेन क्लाइंब किया है, हमने सबमिट किया है, इसका जो भी एक्सपेंस हुआ है IMF ने ये होस्ट किया है। तो हमारा सिर्फ चंडीगढ़ से दिल्ली जाने तक का खर्चा हुआ है, दिल्ली से वापस आने का खर्चा हुआ है, उसके बाद 25 दिन का खाना रहना सारा IMF ने किया। प्लस अब IMF ने नाम लिख लिए हैं सबके कि इन्होंने ये वाला फतेह कर लिया है। अब जैसे कि IMF से इनको बताया गया था कि अगर हम चंडीगढ़ में होस्ट करेंगे तो आपको हम लीडर बनाएंगे। तो इन फ्यूचर अगर अब कोई भी इवेंट होगा, अगर वहाँ विजुअली इम्पेयर्ड जा रहे होंगे, तो क्या पता वो रजत को बोलें कि रजत आप आओ एज अ लीडर। उस केस में दे कैन इसको कुछ वो दे सकते हैं, है ना। या दीपक जैन को कहेंगे कि अच्छा डेफ को लेके जा रहे हैं, अब आप लीडर हो, आपने 2 कोर्स कर लिए हैं, आप वहाँ तक गए हो, तो आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है।
उस केस में दे कैन गिव समथिंग, है ना। बट अभी एज ऑफ नाउ तो सारा हमारा जो इवेंट था वो सारा स्पॉन्सर्ड बाय IMF था। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾ? नहीं सर, ये मेरी 4 टाइम है। मैंने भी इनके साथ ही सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है 2016 में। मैंने BMC कोर्स किया है 2 बार। एक किया मनाली से अभी मास से, एक किया है मैंने कश्मीर से। तो जो मनाली से किया था तब हमने फ्रेंडशिप पीक हमने फ़तेह की थी, और जब हमने कश्मीर से किया था तुलियान पीक हमने फ़तेह की थी। तो दोनों की हाइट 18,000 इतनी ही थी। तो अभी वाली जो हम करके आए हैं वो 20,000 से ऊपर की फीट है। ਜਿਹੜਾ IMF ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ? सर IMF एपेक्स बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, है ना, जो कि रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अलग अलग करवाते हैं। और अराउंड द इंडिया जितने भी माउंटेन के जो एक्सपीडिशंस होते हैं, माउंटेन की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो IMF कंडक्ट करवाता है सर। यस ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਕੀ सर मैं एज अ माउंटेनियर गया था साथ में पहले। सेकंड मैं इनके साथ गया था एज ए इंटरप्रेटर, क्योंकि हमारे जो लीडर थे वो हेयरिंग थे। तो जो भी वो बोलते थे वो साइन लैंग्वेज में इनको मैं बताता था, ताकि ये किसी भी चीज़ से पीछे ना रह पाए। अब रजत को तो सुन के हर चीज़ पता लग रही है, बट दीपक जैन को नहीं पता लग रहा, आयशना को नहीं पता लग रहा, अंजलि लड़की जो दिल्ली में उसको नहीं पता लग रहा, उनको हम बताते थे। एक लड़की और है अंगमो, जो दिल्ली में वो जॉब करती है बैंक में। तो अंगमो और रजत ब्लाइंड हैं, और दीपक जैन, आयशना और अंजलि डेफ हैं। ये 5 लोगों की टीम थी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच सर। ਨਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 5 ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।